हाँ जी, greetings of the day students. Let's begin with new topic. So today we will learn about common bus system, right? So in last lecture we have discussed about various basic registers which have been used in basic computer systems, right? So we have discussed 7 to 8 categories of registers, right? So today we will learn common bus system. So basically a definition of bus. Bus is a medium through which we can transfer the information from one of the registers to many of the registers, right? So this is a basic definition for your bus. So how to use the concept of common bus system, today we will learn about that, right? So your basic computer is having 8 registers, 1 memory unit and 1 control unit, right? So the paths must be provided to transfer information from one register to another and between memory and registers. So if you don't use the concept of bus, then we will require maximum wires, right? The number of wires will be excessive if connections are to be made between the outputs of each register and the inputs of other registers, right? So more efficient scheme is to transfer the information using common bus. अगर आप लोग बस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल मिनिमम रिक्वायर wires and your circuitry will be complex. So to reduce that complexion, we will be going for common bus system. So basically this gives a savings in circuitry over a complete connections between registers. So let's see how it will work. So if you remember in last two lectures back, we have discussed how to construct a bus system using MUX or 3-state bus gates, right? 3-state buffer gates. So let's begin with common bus system. So first of all, if you want to select the bus output, you will have to select 4 selection lines. So let's see the diagram. So this is a diagram for common bus system. बेटा आवाज आ रही है ना मेरी सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये आप लोग एक डायग्राम देख रहे हो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर मैंने क्या यूज करा हुआ है, वी हैव 8 रजिस्टर्स, ARPC, they are of 12 bits. Then we have data register, accumulator, INPR, input register, IR register. IR stands for instruction register, TR stands for temporary register, and OUTR stands for output registers, right? If any student is having any doubt in full form, ask me. Clear है? So I am using a total number of 8 registers, right? A memory unit and a control unit. So bus output is selected using selection lines. So I am going to use 3 selection lines, S2, S1 and S0. So these are the selection lines. If you want to place something on the bus, then you will go for these selection lines, and you are seeing one number along with these lines. Along in front of memory unit we have a number 7. Along with AR we have a number 1, PC we have a number 2, and along with the DR we have a number 3. Understand? समझ आ रहा है? जो आपकी एक एरो है जो कि बस की तरफ जा रहा है, ये आपकी कंप्लीट बेटा बस है, 16 बिट कॉमन बस में यूज कर रहा हूं, और हर एक रजिस्टर की जो आउटपुट है उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है? So if you want to place some data onto the bus, you will have to pass the corresponding value
into the selection lines, right? You are going to write onto the bus using selection lines. For example, dr is having number 3 and the corresponding value for 3 is 011. So the output of data register is placed onto the bus when S2, S1 and S naught is equals to 011. Am I clear? Yes, sir. अगर डेटा रजिस्टर ने अपने कंटेंट्स को बस के ऊपर डालना है तो वो कैसे डालेगा? S2, S1 और S नोट के अंदर क्या पास करेगा? 011. 011 बाइनरी है और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 3. ठीक है. सिमिलरली अगर IR ने अपना कोई कंटेंट पास करना है बस के अंदर तो वो कैसे करेगा? 5 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है? 101. The corresponding binary value for 5 is 101. तो यहां पे मैं पास करूंगा S2, S1 और S नोट के अंदर क्या पास कर दूंगा मैं? अगर IR ने अपने कंटेंट्स बस के ऊपर डालने हैं, ये आपकी बस है 16 बिट और इसके सामने नंबर पड़ा हुआ है 5, तो यहां से मैं क्या पास करूंगा? S2, 101. S1 S नोट के अंदर करूंगा 101. ठीक है. So the number corresponding to the register, it will let you know which register is going to place their data, which register is going to write their data onto the 16-bit common bus, right? So next, ठीक है, ये था कंटेंट्स प्लेस करने का कि रजिस्टर अपने जो कंटेंट्स है वो बस के ऊपर कैसे डालते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन लाइंस. अब रजिस्टर्स कंटेंट्स उठाते कैसे हैं, मतलब कि रजिस्टर्स कंटेंट्स को रीड आउट कैसे करते हैं. आपने देखा होगा इस डायग्राम के अंदर you are seeing that we have two lines. The one is acting as input and the another is acting as a output. दोनों तरफ एक एक लाइन बनी हुई है रजिस्टर के अंदर. ठीक है. सो नाउ if any register want to read the contents of the bus, he it will have to activate its corresponding LD input. LD means load input. For example, if PC register want to read something from the bus, PC will have to activate its LD input and the corresponding contents of bus will be placed onto PC, right? So memory receive the contents of the bus when its write input is activated. तो अगर मेमोरी ने कंटेंट्स रिसीव करने हैं, अब आप डेटा राइट कर रहे हो, मेमोरी का क्या हो रहा है? राइट हो रहा है, तो उसको अपना राइट सिग्नल अनेबल करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर मेमोरी अपने कंटेंट्स बस के ऊपर राइट करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसके सामने नंबर पड़ा हुआ है 7, तो देन ही विल सेंड 111. द वैल्यू, द कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू फॉर 7 इज 111. So you will have to send S2, S1, S naught is equals to 111, 111, right? Similarly, memory places its 16-bit output onto the bus when read input is activated and S2, S1 and S naught is equals to 111, right? So we have a total 4 registers: data register, accumulator register, IR register and temporary register, which is of 16 bits, right? AR register and PC register are of 12 bits. Why they are of 12 bits? We have discussed in last lecture, because accumulator and program counter, they deals in addresses. That is why they are taking 12 bits, right? If any student is having any doubt till now, ask me. यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं. आगे चलें.
यस सर। अब आपने देखा होगा बेटा, यहाँ पे ना हमारे पास 16 बिट के रजिस्टर हैं और 12 बिट के रजिस्टर हैं, और 2 रजिस्टर्स हैं हमारे पास 8 बिट्स के। ठीक है, टोटल वी हैव अ टोटल नंबर ऑफ 8 रजिस्टर्स आर देयर। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। DR, we have AC, we have IR, we have TR. They belong to the category of 16-bit register. ठीक है, they belong to the category of 16-bit. Next, we have AR register and we have PC register. They belongs to the category of 12 bits, right? And INPR सर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा। विजिबल नहीं है बेटा? नहीं सर, नहीं दिख रहा। अब देखिए, विजिबल नहीं है आपको कंटेंट्स? सर ऊपर वाली लाइन विजिबल नहीं है। नीचे लिख देता हूँ। AR दिख रहा है, PC दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब विजिबल है? Now the whiteboard is visible to all of you. So I have written a total 8 registers on the board, right? DR, TR, AC, IR, they are of 16 bits. INPR, out are 8 bits. AR and PC of 12 bits, right? So if you want to place your contents, if you want to place the contents of 16 bits onto the bus, suppose you have to do a transfer of this. AR goes to DR because AR deals in addresses, right? If you are going to read something from the memory or you are going to write something onto the memory, then AR register will be playing a great role, right? So now the value of DR is of 16 bits and the contents of AR will be of 12 bits. So its lower 12 bits will be transferred to AR, right? The lower 12 bits and the upper 4 bits will be set to 0. If you are having a data value of 12 bits and the upper 4 digits will be set to 000 and remaining will be set to the data value which you are going to pass. So it is of 16 bits. So only these 12 bits will be sent to AR. Am I clear? Yes sir. Okay, similarly for INPR and OUTR, only lower 8 bits will be going to transfer. Only 8 bits. So INPR is basically a register which provides information to the bus. INPR, it means input register. It will give you input only. So it will feed input onto the bus. Only input, right? Similarly, out register, it is used to give output. It is used for taking output. It receives information from the bus through accumulator. So let's discuss all the operation one by one. If any student is having any doubt till this point, ask. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो आगे देखते हैं कि मेमोरी एड्रेस कैसे काम में आते हैं। तो बेसिकली
we are using accumulator we are using address register AR register to specify the memory address. AR is a register which is used to specify the memory address. एक मिनट बेटा होल्ड करना जरा. हाँ जी सर, हेलो. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो AR है, AR इज बेसिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई दी एड्रेस, राइट. सो अगर हम AR यूज नहीं करते तो जैसे हमने यहाँ पे कॉमन बस यूज करी है डेटा के लिए, सिमिलरली मेरे को यूज करनी पड़ रही थी एड्रेस बस फॉर एड्रेसेस. सो टू एलिमिनेट दैट सेपरेट एड्रेस बस वी हैव यूज्ड अ सिंगल रजिस्टर whose name is AR that deals with addresses, right. We have eliminated the need of address bus by using the separate register which is called a single register which is called address register, right. So if you want to read some data from to the from memory, or you want to write some data onto the memory unit, this register plays a very crucial role, right. It plays a very crucial role, right. So let's take an example. So one thing more, the input of AC come from adder and logic. See the diagram which is shown in PPT. You have seen that accumulator is getting input from 3 different sources, right. Although all the other registers are getting the input from bus, but the only register which is getting input from 3 different sources, that is from ALU, adder and logic circuit, right. So let's understand the concept. So accumulator is getting the input from 3 different sources. The one is the output of accumulator, the second one is data register, and the third one is INPR is feeding input to accumulator, right. So this is an important concept. All the other registers are getting the input from bus, but the accumulator is getting the input from 3 different sources. The first set is coming from accumulator. For example, if you are going to play some addition operation, if you want to add the contents of accumulator, if you want to add the contents of accumulator and the contents of data register, then the contents will be added and it will be sent into the accumulator itself. So that is the reason why accumulator is involved, right. Am I clear? Yes, sir. Every register is having 3 other signals. LD stands for load, INPR stands for
increment, CLR stands for clear. If you want to clear some register, then you simply enable its clear input. If you want to increment the contents of a particular register, for example, if you want to increment DR, you will have to enable its INPR signal, right? So I'm going to perform this operation on some value. So here we have our operation AC plus DR, and the contents of AC is 1 0 1 0. The contents of this 1 1 0 0. Now you will have to perform addition operation, and the result will be 0 plus 0 will be 0, 1 plus 0 will be 1, 0 plus 1 will be 1, 1 plus 1 0 with 1 carry, right? So the contents of accumulator after the addition operation will be 0 1 1 0, and E will be set to 1. So here you are seeing in the diagram one E end carry flip flop is there, right? One end carry flip flop is there, which is used to carry end carries, extra bits. If some overflow is there, it will be sent into this E flip flop. Am I clear? So Yes, sir. let's see how the transfer takes place. For example, we have AC goes to DR, and so I want to perform these two micro operations in a single clock cycle, right? So first of all, you want to place the contents of AC into DR. So how the contents of, first of all, this micro operation, first of all, the number along with AC is 4. So the corresponding binary value for 4 is, what is the binary value for 4? 100. Shabash. 100. It means you will have to pass this into S2, S1, S0, right? You are going to place the contents of accumulator into DR. So first of all, the contents of accumulator, it will be placed onto the bus by enabling 100. Now, after enabling S2, S1, S0 to 100, the contents of AC will be put onto the 16-bit common bus. Now, how DR is going to read that contents? With the help of this, you have placed the contents of accumulator onto the 16-bit bus. Now, here you have to take the contents from the bus onto DR by using LD input. This is through selection lines. Am I clear? So I think this has been completed, right? So first of all, the contents of accumulator will be put onto the bus using selection lines. Then from bus, it will be sent onto the DR register by using load input of that register, right? So second micro operation, that is the contents of AC, it will be sent onto the accumulator. How? First of all, the contents of data register will be sent to accumulator through ALU, adder and logic circuit, and by enabling the load input. By enabling the, first of all, it will send the contents through ALU, and from ALU, it will be coming to AC by enabling load input. Am I clear? Am I clear about this transfer?
यस सर। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सो ये दोनों आपके जो माइक्रो ऑपरेशंस हैं वो सेम कंट्रोल्स क्लॉक साइकिल के अंदर परफॉर्म होंगे। अब मेरे को बताइए राइटिंग कैसे होती है, रीडिंग कैसे होती है और मेमोरी कैसे काम करती है, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। किसी स्टूडेंट को राइटिंग में डाउट है, रीडिंग में डाउट है, या मेमोरी एड्रेस कैसे फेच करते हैं उसमें डाउट है तो बताइए, या रिपीट करना है तो बताइए। बेटा कोई जोट डाउन करते हो नोट्स, जो मैं बोलता हूं लिखते हो नोटबुक्स पे? यस सर। नो सर। कि मैं पहले आपको बताने लगा हूं राइटिंग। राइटिंग ऑन टू बस, ठीक है। बस के ऊपर राइटिंग कैसे करते हैं? यूजिंग सिलेक्शन लाइंस। So we have S2, S1 and S node, 3 selection lines which we are going to use for putting some value onto the bus, right? उसके बाद है हमारे पास रीडिंग, रीडिंग फ्रॉम द बस। So by enabling LD input of that particular register, you are reading something from the bus, right? So if memory is involved, then instead of LD, we have read and write control signals. Am I clear? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। इसकी एक और आसान सी डायग्राम है। सबसे पहले डायग्राम से पहले एक टेबल समझिए आप। एक टेबल है, ये टेबल के कोरिस्पोंडिंग कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर अगर 0 है तो हम पास करेंगे 0000। दैट इज उस केस के अंदर कोई भी रजिस्टर काम नहीं करता है, ठीक है। अगर डेसिमल नंबर 7 है तो आप लोग सिलेक्शन लाइंस के अंदर पास करेंगे 111। 111 का मतलब है कि मेमोरी आपकी रेफर करी जा रही है, या रीड हो रही है या राइट हो रही है। समझ आ गया? So we have to use selection lines for writing onto the common bus system, and we are going to use load input of particular register if we are going to use reading operation. Am I clear? So let's look one more diagram which is a simple diagram as compared to the previous diagram. सो इट्स अप टू यू, आपने कौन सी डायग्राम को फॉलो करना है, ठीक है। दोनों में से एक डायग्राम बना लेना पेपर में, जो आपको आसान लगती है दोनों में से। क्लियर है? यस सर। एक दो स्टूडेंट्स को छोड़ के और कोई जवाब नहीं दे रहा। यस सर। या तो क्लास में स्टूडेंट्स अटेंटिव नहीं है, बेटा कोई चीज रिपीट करनी है तो बता दो मेरे को। नो सर। आगे चलें? यस सर। यस सर। चलिए, so before starting basic computer instructions, one poll is waiting for you people. So let's start with poll. जो क्वेश्चंस पोल के अंदर हैं वो सिर्फ कॉमन बस सिस्टम के ऊपर बेसिस हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर करना, ठीक है। चलिए मैं लॉन्च कर रहा हूं पोल।
So read the questions carefully and then answer. एंड स्टूडेंट्स, ये मेरी आपको ना आज लास्ट टाइम है, वार्निंग है आप लोगों को कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने नाम से पहले रोल नंबर नहीं दिया हुआ है, मैं उनकी नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आपका जो नाम है उससे पहले आपका रोल नंबर होना चाहिए यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं काफ़ी बच्चे देख रहा हूँ जिन्होंने अभी भी अपना रोल नंबर नहीं मेंशन करा हुआ है। ठीक है, पहले मेरे को चाहिए आपका रोल नंबर, उसके बाद आपका नाम चाहिए। चलिए मैं पोल एंड कर रहा हूं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन था रीडिंग कैन बी डन यूजिंग एलडी इनपुट। ठीक है, रीडिंग कैन बी डन कि बस से हम रीड कैसे कर सकते हैं, कोई भी रजिस्टर बस से कंटेंट्स कैसे रीड कर सकता है, बाय अनेबलिंग इट्स लोड इनपुट। तो इसका आंसर जो था वो फर्स्ट था। 43 स्टूडेंट्स का ठीक है, 11 स्टूडेंट्स ने दिया है यूजिंग सिलेक्शन लाइंस। तो सिलेक्शन लाइंस को यूज करके हम लोग राइटिंग करते हैं, ये याद रखना। फॉर राइटिंग ऑन टू दी बस
you are going to use selection lines. CLR input is basically used to clear the contents of that particular register, right? So the answer of this question is first, that is reading can be done using LD input. Second, AC receives input from, तो इसका जो आंसर है that is all of these. Yes, sir. ठीक है, 7 + 8 15, 15 + 18 स्टूडेंट्स ने आंसर गलत करा हुआ है. ठीक है, कुछ 3 बच्चों ने आंसर करा है आउटपुट का, 8 बच्चों ने आंसर करा हुआ है डेटा रजिस्टर का, 7 स्टूडेंट्स ने आंसर करा है INPR का, 39 स्टूडेंट्स ने आंसर करा है ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. लास्ट क्वेश्चन इज AR and PC has dash bits 12 because bits. accumulator and program counter, they both deals with addresses. That is the reason they are taking 12 bits. Yes, sir. Why 12 bits? Because 4096, and how you are going to write 4096 2 raised to power 12, right? तो मैं रिजल्ट शो कर रहा हूं अब आपको. चलिए, नेक्स्ट इज so next question is basic computer instructions, or you can say that computer instruction formats. So very important topic is there. So precisely we have three categories. We have three categories of computer instruction formats, or you can say that instruction code format. The first category is called memory reference instruction. The second category is called register reference instruction. And the third category is called input output instructions, right? So first we have memory reference instructions. First of all, you need to remember in memory reference instructions, you have addresses, 12 bits of address, and a OP code is there, right? So you have a 12 bits of address, and OP code, bit number 12, bit number 13, and bit number 14. These are bits from 0 to 11, right? So bit number 12, bit number 13, bit number 14, they are acting as a OP code, that is operation code. And bit number 15th, which is addressing modes, I is 0 for direct address mode and 1 for indirect address mode, right? So let's check. And the value of operation code for memory reference instruction is fixed. That is, it will move from 000 to 111. That is, decimal value is 0 to 6. Am I clear? So I'm repeating again, for memory reference instructions, your bits from 0 to 11 corresponds to address bits. Your bits from 12, 13 and 14 corresponds to operation code. Bit number 15th, that is this bit number 15th bit corresponds to addressing mode. And we have two categories of addressing mode, direct addressing mode and indirect addressing mode. 0 is for direct and 1 is for indirect. Am I clear? So the operation code is 000 to 116. So 0 to 6 we have a operation code. Am I clear? बेटा किसको नींद आ रही है? हेलो
ये क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट कैटेगरी सर। आगे चलें। यस सर। यस इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कैटेगरी है इंस्ट्रक्शंस की, अगर मैंने करना है, पहले इसकी एग्जांपल समझते हैं। ये 0 to 6 फिक्स है, ठीक है? 0 to 6 फिक्स है हमारे पास। तो जैसे कि हमारे पास एंड इंस्ट्रक्शन आ जाती है, तो एंड के केस के अंदर अगर आपने आई की वैल्यू है 0, आई की वैल्यू है 0, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 0 x x x। अगर i की वैल्यू है 1 तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8x x x, ठीक है? इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये 0 कैसे आया और 8 कैसे आया, ठीक है? ये स्टार्टिंग वाली अगर आप ये करेगी क्या, एंड इंस्ट्रक्शन करती है एंड मेमोरी वर्ड टू एसी। ये मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा। एंड करना है मेमोरी के कंटेंट्स को अकमुलेटर के अंदर, राइट? तो ये 8 और 0 कैसे आया ये समझिए। अगर तो आप लोग i की वैल्यू 0 यूज कर रहे हैं, दैट इज यू आर गोइंग टू फेच द मेमोरी डायरेक्टली, तो उस केस के अंदर i की वैल्यू क्या है 0। ये 3x आपके बता रहे हैं 12 बिट्स किसकी, एड्रेस की। ये वाला 0 जो है फर्दर आपका ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ये है आपका i की वैल्यू और ये है आपकी बिट नंबर 12, 13 और 14। तो जब मैं इनको क्लब करूंगा तो ये हेक्सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्स को, हेक्स वैल्यू विच इज ऑफ 4 बिट्स। समझ आया? सर एक बारी दोबारा से समझा दो। नो सर, समझ नहीं आया। देखो बेटा, सबसे पहले ये आपको पता चल गया है कि जो आपकी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन उसके अंदर ऑपरेशन कोड की वैल्यू कितनी होती है, 000 से लेकर 110 तक, ये वाली वैल्यू फिक्स है, ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग मैं जनरेट करूंगा आपकी इंस्ट्रक्शंस। तो मैं बनाने जा रहा हूं, ये सिंबल है जैसे कि है एंड एड i इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0xxx 1xxx। सिमिलरली फॉर इनडायरेक्ट एड्रेस ये हो जाएगा आपका 8xxx, ये आपका हो जाएगा 9। अब इसको ध्यान से समझना, i इज इक्वल टू 0 का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस, i इज इक्वल टू 1 का मतलब है इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका मतलब है आपकी जो वैल्यू ओवर एज कहां से कहां तक करनी चाहिए, 0 से 6 तक ही करनी चाहिए। लेकिन अगर i की वैल्यू 0 है या i की वैल्यू 1 है तो वो वेरी कर रही है कैसे। अब ये जो 3x लिखे हुए हैं ये आपके बता रहे हैं एड्रेस की इंफॉर्मेशन, मतलब बिट नंबर 0 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट ये वाला 0 जो है, ये वाला जो 0 है इसको मैं लिख सकता हूं 000, बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14, राइट? एंड दिस इज बिट नंबर 15। तो इन सभी को जब मैं क्लब कर लेता हूं ये हेक्साडेसिमल क्या बन जाता है 0। तो एड्रेस क्या बन गया 0xxx। अब समझ आ गया? सिमिलरली जब आपके i की वैल्यू हो गई 1, when you are fetching the memory indirectly, then the value of i is equals to 1 and these zeros will be fixed। and अभी ये क्या बन गया 1 followed by 3 zeros, that is 8। तो एड्रेस क्या बन गया आपका 8xx। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट मेमोरी फॉर एड। सिमिलरली फॉर एड
ऐड के केस के अंदर कैसा हो जाएगा? नाउ ये वाले 3 जो है ये आपके बताते हैं 12 बिट्स का एड्रेस, ठीक है। ये जो हेक्साडेसिमल 1 है ये आपको बताएगा कैसे 1 0 0 0। तो ये जब चारों को मैं क्लब करूंगा ये हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या बन जाएगी 1। तो क्या बन जाएगा 1 x x x। सिमिलरली फॉर 9 कैसे बनेगा? 9 को मैं लिख सकता हूँ ये वाला, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या 9 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 8 4 2 1, दैट इज 1 0 0 1। तो 9 कैसे लिखा हुआ जाएगा 0 0 1 x x x, ठीक है। और क्योंकि ये इनडायरेक्ट है इसलिए ये वाली बिट क्या बन जाएगी 1। तो इसको जब मैं इकट्ठा करूंगा 1 0 0 1 तो ये आपका बन जाएगा 9। समझ आया? स्टूडेंट्स समझ आया कि नहीं? यस सर। आगे बताऊं? थोड़ा बहुत। क्या कहाँ पे डाउट है पूछो मेरे से, यहाँ पे डाउट है, क्या डाउट है? अरे ये x x x क्या है और वो कैसे आया? बेटा आपको जो इसका फॉर्मेट बताया था ये वाला डायग्राम दिख रही है ब्लैक बोर्ड पे? यस सर। ये मैंने लिखा है 0 to 11। ये आपके 0 to 11 क्या था? 0 to 11 क्या था बेटा आपका? एड्रेस ये आपके Address. XX है। समझ आई बात? यस सर। उसके बाद ये 3 बिट्स लिखी हैं जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ऑपरेशन कोड का ओपी कोड। वो आपकी बिट नंबर 12, बिट नंबर 13 और 14 है। उसके बाद आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है बिट नंबर 15। तो ये जो 3 आपके XX हैं ये आपके एड्रेस हैं। मेमोरी को कहां से आपने फेच करना है, क्योंकि आई एम डीलिंग विद मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। तो मेमोरी आपने कहां से फेच करनी है, यहाँ मेमोरी को कहां पे राइट करना है, एड्रेस बताना पड़ेगा। यस सर। करो, अगर आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है संदीप, तो मैंने आज 5 बजे संदीप के घर पे जाना है, तो मैं संदीप के घर में कब तक नहीं जा सकता जब तक मेरे को उसका एड्रेस नहीं पता है, ठीक है। तो जब मेरे को संदीप का एड्रेस पता चल जाएगा मैं संदीप का घर इजीली ढूंढ सकता हूं, ठीक है। तो ये जो XXX है ये आपके बता रहे हैं एड्रेस के बारे में। उसके बाद जो आपका ओपी कोड है वो है आपका ऑपरेशन कोड, वो आपको बता रहा है बिट नंबर 12 13 और 14। दैट इज क्योंकि ये आपकी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं और इसके अंदर जो कोड है वो 000 से लेकर 110 तक होता है। दैट इज फ्रॉम डेसिमल वैल्यू 0 to 6। ये फिक्स है, ये याद रखना। For memory reference instructions, the operation code varies from 000 to 110, right? And the value of I depends upon whether if you are using indirect addressing mode, the value of I is equals to 1. And if you are using direct addressing mode, the value of I is equals to 0. ठीक है? ये समझ आया कि दोबारा समझाऊं? दोबारा सर। हेक्साडेसिमल डिजिट्स के अंदर कितने डिजिट होते हैं बताओ जरा मेरे को। हेक्स के केस के अंदर कितने डिजिट होते हैं, कौन आंसर करेगा? 15 सर। 16 सर। ये देखिए 0 से लेकर 6 तक ये क्या बनता है 000 से लेकर 110, ये है बाइनरी कोड, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एंड इंस्ट्रक्शन है, अगर i की वैल्यू 0 है तो ये कैसे चलेगी 0xxx। अगर i की वैल्यू है 1 तो ये कैसे चलेगी, i की वैल्यू 1 मींस ये वाली बिट 1 सेट हो गई, x x x। ये वाली बिट 1 का मतलब क्या है अभी समझाता हूं। ये हो जाएगा 9 नहीं सॉरी 8। अब पहले इसको समझो जरा, पहले इसको समझिए।
इसका मतलब है ये 12 बिट्स का एड्रेस है हमारा, फ्रॉम बिट 0 से लेकर 11 तक, फ्रॉम बिट्स 0 to 11। ये आपका 12 बिट का एड्रेस हो गया XXX। ये 3 हेक्साडेसिमल नंबर हो गए। 4 into 3 बिट्स हैं तो कितने हो जाएंगे? 4 into 3 मीन्स 12। अब ये वाले आपके 4 बिट्स बचे हैं। यस सर। ये कैसे बना? बिट नंबर 12, 13 और 15, 14 ये है 000। और क्योंकि ये आई की वैल्यू क्या है 0 और ये 15th बिट भी आपके पास क्या बन गई 0। अब जब इसको मैं क्लब करूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा 0। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करा है 0XXX के साथ। समझ आ गया? अब यस सर। अब इसको समझिए 8 कैसे बनाया। अब 8 कैसे बनेगा? अब ये वाले जो 3 है ये आपके हैं 12 बिट का एड्रेस, क्योंकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, आई की वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो 0 ही रहेगा। आई की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई 1 और आगे वाले 3 जीरोस रहे। तो जब मैंने इनको इकट्ठा करा तो इनकी डेसिमल वैल्यू क्या बन गई 8। तो यहाँ पे क्या आ गया 8XXX। समझ आ गया? बेटा आ गया समझ? यस सर। यस सर। चलिए आगे है एक LDA इंस्ट्रक्शन। LDA का समझाता हूं आपको। ठीक है, LDA के केस के अंदर क्या हुआ? LDA के केस के अंदर LDA की फुल फॉर्म होती है लोड अकोमुलेटर। उस केस के अंदर आपके जो एड्रेस की रेंज है वो है 2XXX एंड 8XXX। ठीक है, दिस इज फॉर I is equals to 1 एंड दिस इज फॉर I is equals to 0। अब इसको बाइफरकेट करते हैं फिर। अब ये XXX का मतलब क्या है 12 बिट का एड्रेस। ठीक है, अब 2 कैसे बनेगा? इसका हेक्साडेसिमल 2 कितना होता है? हेक्साडेसिमल 2 है, उसकी बाइनरी वैल्यू बनानी है। कैसे बनाऊंगा? 0 0 1 0। ये बन गया आपका 2। ठीक है, ये बन गया 2 क्योंकि आई की वैल्यू क्या 15th बिट क्या है आपकी 15th बिट इज 0। सो बिट नंबर 12, 13 और 15 को आपने बना 14 को बनाया आपने 2। तो जब इसको कन्वर्ट करूंगा ये बन गया 2। सो 2 फॉलोड बाय XXX। इसका मतलब है ये LDA इंस्ट्रक्शन है। सिमिलरली A कैसे बना? A का मतलब होता है 10। यस। ठीक है, डेसिमल वैल्यू A है, हेक्साडेसिमल A है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये 15th बिट आपकी हो गई 1 0 1 0। ये 10 हो गया XXX। ये आपके हो गए 12 बिट्स का एड्रेस। ये होगी बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 और ये होगी आपकी बिट नंबर 15। तो जब इस सभी को मैं इकट्ठा करके लिखूंगा तो क्या बनेगा? ये A बन जाएगा। अब समझ आया? यस। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी इंस्ट्रक्शंस भी आपकी चलती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज अबाउट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। सो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के केस के अंदर क्या होता है? सिमिलरली ये चीज होगी इंस्टेड ऑफ एड्रेस। अब हमारे पास एड्रेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एड्रेस नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा रजिस्टर ऑपरेशन। ठीक है, सो आपकी जो बिट 0 से लेकर 11 तक डिनोट करेंगे रजिस्टर ऑपरेशन, बिट 12 से लेकर 14 तक ओपी कोड ऑपरेशन कोड, एंड बिट 15 जो है वो फिक्स है, उसको मैंने बना दिया 0। ठीक है, तो अगर आप रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे for register reference instruction, the value for operation code is fixed, that is 111, right? And the value for I is equals to 0, that is these values are fixed, right?
समझ आ गया? तो यहाँ पे जैसे कि एक रजिस्टर रेफरेंस ऑपरेशन की मैं एग्जांपल ले लूं, CLA क्लियर अकमुलेटर। क्लियर अकमुलेटर के लिए मैं क्या पास करूंगा? 7800। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है फिक्स है। ये 7 कैसे आया? 0 1 1 1, दैट इज दीज 4 वैल्यूज। 15th bit is 0 and 777 operation code 777. So that is the reason in all the register reference instructions the instruction begins with the 7 followed by the code, that is 800. So 800 is basically used for CLA, clear accumulator, right? Am I clear about register reference instructions? तो यहाँ पे जो आपकी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है वहां पे ऑपरेशन कोड की वैल्यू क्या होती है? 111। ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है। जबकि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के अंदर इसकी वैल्यू क्या थी? 000 से लेकर 110। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के केस के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करूंगा। इनपुट स्लैश आउटपुट। सबसे पहले तो यहां पे आ जाएगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, and the value for OP code is fixed, that is 111, but instead of this 0 we are having 1, right? So for input output instruction your instruction will begin with F. So it is F800. तो आपको इंस्ट्रक्शन से देखकर ही पता चल जाएगा कि वो इंस्ट्रक्शन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है। अगर तो स्टार्टिंग डिजिट आपका F लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो इनपुट आउटपुट वाली कैटेगरी के अंदर है। अगर उसके अंदर स्टार्टिंग में 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर है? रजिस्टर रेफरेंस वाली कैटेगरी के अंदर। अगर उसका कोड वेरी करता है 0 to 6 या फिर 8 to E, तो इसका मतलब है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। अब बताओ, अगर कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है? तो ये इसका टेबल देखिए जरा और ध्यान से इसको चेक कीजिए। जो मैंने आपको समझा रहा था ना, ये टेबल के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी थी हमारी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, एंड, ऐड, LDA, STA, BUN, BSA, ISZ। तो ये वाली जो कैटेगरीज है ये आपकी आती है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के अंदर, राइट। तो दोनों के केस के अंदर आपका जो कोड है वो वैल्यू वेरी करेगी 0 to 6। समझ आ गया? सिमिलरली वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 register reference instructions and 6 input output instructions. So all the register reference instructions begin with code 7. ये समझ आया बेटा 7 कैसे आ रहा है? Yes sir. भरत बात कर रहा है। भरत, यस सर। हाँ जी भरत, आपको पता चल गया 7 कैसे आया? यस सर। बताओ कैसे आया? सर उसका ओपी कोड है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में ओपी कोड तो उसका मोड है 1110 है, तो 0111 है। एड्रेसिंग मोड की वैल्यू कितनी है? किसकी? 15th बिट की वैल्यू क्या है इन केस ऑफ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन? 0। वेरी गुड। हाँ जी, उसके बाद सचिन। Yes sir. हाँ जी सचिन, आप बताइए F कैसे लिखा मैंने? F800 क्यों लिखा है? क्योंकि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में सर ओपी कोड की वैल्यू सर 111 है। अच्छा,
आई की वैल्यू 1 है, इसलिए उसको शाबाश। बाइंड तो वी 1 हैव बार लिखा। 4 कंसेक्टिव वंस और 4 कंसेक्टिव वंस हो वो एफ बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो सारे वहां पे एफ लिखे हैं। ये जो पीपीटी के अंदर टेबल खुला हुआ है इसकी समझ आ गई है सबको? यस सर। आगे चलें। ये जो Yes, sir. आपकी 6 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस है ना, इसका डेप्थ अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, आज या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड कैसे चलता है, ऐड कैसे चलता है, एलडीए कैसे चलता है, एसटीए, बीयूएन, बीएसए, आईएसजेड, ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है हमने, ठीक है। तो वन मोर पोल इज देयर, ठीक है। तो सेकंड में पोल आपके सामने कर रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना और आंसर करना। कितने जी हाले
हाँ जी, मोहित शर्मा। मोहित मोहित मेहताब बेदी। मोहित, आपको रोल नंबर नहीं मिला है? हेलो मोहित। मोहित यस सर। बेटा, रोल मिला है नंबर नहीं सर। मिला आपको? तो फिर रोल नंबर क्यों नहीं लिखा सर हुआ याद भूल आपने? गया। अभी चेंज करो इसको, आईडी को दोबारा ओके सर। लॉगिन करो। मेहताब यस बेदी। सर। हाँ बेटा, आपको रोल नंबर नहीं नहीं मिला था सर, अभी मैं तक? लीड स्टूडेंट हूँ ना, तो अभी नहीं मिला। ठीक है। उसके बाद है उमेश कुमार। उमेश, पहले रोल नंबर लिखो और अपना नाम बाद में लिखो, इसको चेंज करो अभी। उमेश। अहमद। अहमद, रोल नंबर 7753। यस सर। बेटा, अपना रोल नंबर पहले लिखो और उसके बाद अपना नाम लिखो। ठीक है सर। इसको चेंज करके दोबारा लॉगिन करो। उमेश। अभी उमेश कुमार। यस हाँ सर, जी यस सर। उमेश। बेटा, आप ओके सर। चेंज कीजिए अपना और दोबारा ओके सर। लॉगिन कीजिए। उसके बाद है अनुज वर्मा। अनुज। अनुज। अनुज, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो। अनुज है ही नहीं का। चलिए बेटा, मैं पोल एंड कर रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अभी तक 2 बच्चों ने आंसर नहीं करा है अभी तक भी, तो एंड कर रहा हूं पोल में। फर्स्ट क्वेश्चन था मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट्स ऑफ। इसका जो आंसर था वो फर्स्ट था 000 से लेकर 110। तो 48 स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के केस के अंदर आई की वैल्यू 1 होती है और ओपी कोड हमारा होता है 111। तो ये 51 स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ठीक है। तो रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको, रिजल्ट्स देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं लूंगा 10 मिनट की ब्रेक। 10 मिनट के बाद हम फिर मिलेंगे। पानी पूनी पी लो, ठीक है। 10 मिनट्स के बाद 2:40 हुए हैं, 2:50 पे मैं दोबारा लेक्चर शुरू करूंगा। थैंक यू। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस। हेलो। So a computer should have a set of instructions so that the user can construct a machine language programs to evaluate any function that is known to be computable, right? So when you are going to set that a particular set of instruction is complete or not, if it is having all these instructions, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है? अगर उस इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर ये जो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट हैं, तो हम कहेंगे कि वो वाला जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो कंप्लीट है, ठीक है। सो दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स, राइट? So what are those categories? So the first category is called functional instructions. So functional instructions के अंदर आ जाती हैं हमारे पास arithmetic, logical and shift instructions.
तो पहली इंस्ट्रक्शन है हमारे पास ऐड CMA कॉम्प्लीमेंट अकमुलेटर INC, इंक्रीमेंट CIR सर्कुलर शिफ्ट राइट, CIL सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट, एंड CLA accumulator clear accumulator. CLA stands for a clear accumulator, right? So these are under the category of functional instructions. Second category is transfer instructions. So any data transfer between memory and processor registers. So first category is called LDA, load accumulator and store accumulator. Next category we have control instructions. So all the instructions which are dealing with sequencing and control. For example, BUN. BUN stands for branch unconditionally. BSA, branch and save accumulator, right? ISZ, return if zero. Okay. So last category is input/output instructions. So here we have INP and out, two instructions are there. Am I clear? Am I clear about the definition of instruction set completeness? Yes, sir. आप कब कहेंगे कि मेरी जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो कंप्लीट है? जब उस पर्टिकुलर सेट के अंदर हर कैटेगरी की इंस्ट्रक्शन आती हो, तब मैं कहूंगा कि मेरा जो इंस्ट्रक्शन सेट है दैट इज सेट टू बी कंप्लीट. So it is having 4 categories: functional instructions, data transfer instructions, control instructions, which deals with all the controls, right? Which deals with branching. तो हम ये later on पढ़ेंगे, branch instructions कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में later on discuss करेंगे. And next category we have input/output instructions. ठीक है? So ये पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. What do you mean by इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस? तो ये डेफिनेशन आपको देनी है उसके अंदर. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल यूनिट. सो कंट्रोल यूनिट ऑफ अ प्रोसेसर ट्रांसलेट्स फ्रॉम मशीन इंस्ट्रक्शंस टू कंट्रोल सिग्नल्स फॉर द माइक्रो ऑपरेशंस दैट इंप्लीमेंट देम. कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने. ठीक है. किसके लिए? माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. सो दैट कि जो आपके माइक्रो ऑपरेशंस हैं वो इजीली हम इंप्लीमेंट कर सकें. क्लियर है? सो वी हैव 2 ways for implementing these control units. The first way is called hardwired control unit and the second category is called microprogrammed control unit. So in hardwired control unit is made up of sequential and combinational circuits to generate the control signals. The second category is called microprogram control. Here we have a microprograms, right, which will be stored in control memory, which are used to activate the necessary control signals, right? So a control memory on the processor contains a microprograms that activate the necessary control signals. ठीक है. So control unit का काम क्या होता है? कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करना. किन के लिए? माइक्रो ऑपरेशंस के लिए. ठीक है. तो वो जो कंट्रोल यूनिट है उसको हम 2 तरीकों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. पहला जो वे है उसको बोला जाता है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट जो है उसके अंदर जो आपका CU है, दैट इज योर CU इज मेड अप ऑफ sequential and combinational circuits to generate the control signals, right? इसकी सेकेंड कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या होता है कि आपका जो नाम से ही पता चल रहा है कि छोटा सा प्रोग्राम होगा जो कि कंट्रोल मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, जो कि यूजर लिखेगा एंड उस माइक्रो प्रोग्राम को यूज करके हम लोग कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेंगे. ठीक है. चलिए इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं यूजिंग हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. ठीक है. सो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट होता क्या है. सो इन हार्डवायर्ड ऑर्गेनाइजेशन
कंट्रोल लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड विद गेट्स, आपने गेट्स पढ़े हैं ना, एंड गेट होता है हमारे पास, और गेट होता है, नैंड गेट होता है, एक्सोर गेट होता है, ये वो चीज है। उसके बाद आ जाता है फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया था, विच इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, फ्लिप का मतलब होता है 1 और फ्लॉप का मतलब होता है 0। डिकोडर्स, डिकोडर्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं, अभी आपको बताऊंगा कैसे। एंड अदर डिजिटल सर्किट्स। सो बेसिकली जो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट होता है उसके अंदर जो कंट्रोल लॉजिक है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। जितनी भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे कि गेट्स हो गए हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए हैं, डिकोडर्स हो गए हैं, या अदर डिजिटल सर्किट्स हैं। ठीक है, तो इसकी एक एडवांटेज क्या है, इट कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन। तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट को यूज करके हम लोग फास्ट मोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेकिन इसके अंदर एक डिसएडवांटेज भी है। एक मिनट, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस सर। बेटा, आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। यस सर। इंटरनेट बंद हो गया था। चलिए, तो वी हैव अ वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। if any modification or if any later on stages, if any change is there, you need to change the circuitry, you need to change the wiring among various components। क्योंकि जो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट होता है इसकी जो सर्किटरी है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है, तो आपको सारा डिजाइन मॉडिफाई करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा अगर आपको वायरिंग चेंज करनी है। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज क्या थी हमारे पास, ये हमें फास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन देता है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी वायरिंग के अंदर अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ आ जाती है, कोई चेंज करनी पड़ती है, तो मेरे को सारी की सारी वायरिंग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये जो 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे इसके में किसी को डाउट है तो पूछ लो। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इम्प्लीमेंट कंट्रोल यूनिट यूजिंग हार्डवायर्ड कंट्रोल। ठीक है, या फिर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लिए। If any student is having any doubt, ask me students. So I am repeating again, in hardwired control unit, all the control logic is designed using hardware devices like gates, flip-flops, decoders and other digital circuits. So it has the advantage that it can be optimized to produce fast mode of operations, but it is having one disadvantage, that is it requires changing in wiring among various components if the design has to be modified or changed. So इसके ऑपोजिट जो है जिसको बोला जाता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। सो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करी जाती है सबसे पहली बात कंट्रोल मेमोरी के अंदर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइसेस बहुत कम होती हैं एज कंपेयर टू हार्डवायर्ड कंट्रोल लॉजिक। So the control memory is programmed to initiate the required sequence of micro operations. So अगर आपने माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अंदर कोई भी चेंज करनी है तो आपको अपना प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशंस या चेंजेस करनी पड़ेंगी। आपको किसी भी तरह की वायरिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आपको किसी भी तरह के सर्किट के अंदर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसकी एडवांटेज है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्लो होता है एज कंपेयर टू हार्डवायर्ड माइक्रो प्रोग्राम्स। ठीक है, बेटा दोनों में कोई डाउट है तो पूछ लो। हार्डवायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम के डिफरेंसेस समझ आ गए हैं? यस और नो? यस सर। सबको?
चलिए इसकी डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ये कंट्रोल यूनिट है बेसिक कंप्यूटर का, जिसके अंदर मैंने हार्डवायर्ड लॉजिक कंट्रोल सर्किट्स यूज करे हुए हैं। ठीक है, सो इसके अंदर है हमारे पास सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देन वी हैव कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सर्किट्स, देन वी हैव अ डिकोडर, अ सीक्वेंस काउंटर। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर 4 चीजें यूज करी हुई हैं, 1 2 3 4 और 5, रेदर 5 थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो जब भी आपकी इंस्ट्रक्शन रीड आउट होती है तो वो सबसे पहले रीड आउट होके किसके अंदर आ जाती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिकोडर्स। एक डिकोडर का साइज है 3x8 और दूसरे का साइज है 4x16। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एक सीक्वेंस काउंटर और एक है हमारे पास कॉम्बिनेशनल कंट्रोल लॉजिक। क्लियर है? तो सबसे पहले आपकी जो इंस्ट्रक्शन है जो मेमोरी से रीड आउट करी गई है वो रीड होकर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ जाती है और उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर उसको बाइफरकेट करा जाता है। उसकी जो 0 से लेकर 11 बिट्स हैं वो फीड करी जाती है कॉम्बिनेशनल कंट्रोल लॉजिक को। बिट नंबर 12, 13 और 14 ये डिकोडर के पास आ जाती हैं। क्योंकि 3 बिट्स हैं तो यहाँ पे डिकोडर यूज करा जाएगा 3x8। 3 इनपुट्स को आपको कन्वर्ट करना है 8 आउटपुट्स के अंदर, तो इसके लिए आपको एक डिकोडर की ज़रूरत होगी। डिकोडर का काम क्या होता है, सिग्नल्स की डिकोडिंग करना और उसको आगे सेंड कर देना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 बिट्स हैं, बिट नंबर 12, 13 और 14। ये 3 बिट्स आपकी कन्वर्ट होके हमने कन्वर्ट करनी है 8 बिट्स के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो डिकोडर काम में आएगा दैट इज 3x8। ठीक है, तो D0 D1 से लेकर D7 तक आपकी बिट्स जाएंगी जो कि डिकोड होगी। तो इसके लिए डिकोडर जो काम में आया दैट इज 3x8 डिकोडर। देन बिट नंबर 15, तो जो आपकी बिट नंबर 15 है वो हमने फीड करी हुई है आई फ्लिप फ्लॉप के अंदर। बिट नंबर जो 15 है वो हमने डाली हुई है किसके अंदर, आई फ्लिप फ्लॉप के अंदर। क्लियर है? और जो कि हम दोबारा से फिर किसके अंदर सेंड कर रहे हैं, अपना कंट्रोल लॉजिक है उसके अंदर भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशनल कंट्रोल लॉजिक है जिसके अंदर काफी सारे हार्डवेयर, क्योंकि ये हार्डवायर्ड के साथ यूज करा हुआ है इसके लिए इसके अंदर काफी सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एक और डिकोडर यूज करा हुआ है जो कि कहां से आ रहा है, एससी से आ रहा है, सीक्वेंस काउंटर। सो एससी का काम क्या होता है, सिग्नल्स जनरेट करना, एससी कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करना। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 4x16 का डिकोडर। ठीक है, तो सीक्वेंस काउंटर जो है आपका 4 बिट्स का है, तो उसने यहाँ पे 4 इनपुट्स लिए। 4 इनपुट्स के बाद यहाँ पे एक और डिकोडर यूज हुआ जिसका साइज क्या है 4x16। तो यहाँ पे आपके पास आए T0 से लेकर T16 तक सिग्नल्स जनरेट हुए, T15 तक सॉरी टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट हुए। समझ आ गया? ठीक है, तो ये जो आपके डिकोडर सिग्नल्स हैं D0 से लेकर D7 ये फीड करे जाएंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को, प्लस T0 से लेकर T15 तक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स को दिए जाएंगे। उन सभी को क्लब करके उनके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और हमारे पास क्या मिल जाएंगे, कंट्रोल सिग्नल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हेलो, यस सर। अब इसको मैं ये डायग्राम का पता चल गया, इसको मैं अभी समझाता हूँ कि ये काम कैसे करती है। इस डायग्राम का पता चल गया कर क्या रही है, हेलो। सबसे पहली बात तो ये है, ये वाला जो सर्किट मैंने डिजाइन करा है ये करा है हमने हार्डवायर्ड कंट्रोल लॉजिक के साथ। ठीक है,
तो द सीक्वेंस काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट करा जा सकता है, क्लियर करा जा सकता है सिंक्रोनसली, ठीक है। सो जो मोस्ट ऑफ द टाइम है जो आपका काउंटर है वो इंक्रीमेंट होता है सो दैट टू प्रोवाइड द टाइमिंग सिग्नल्स आउट ऑफ 4x16 डिकोडर, ठीक है। सो वंस इन अ वाइल द काउंटर इज क्लियर्ड टू 0, एक दफा जो काउंटर है उसको हम 0 करते हैं सो दैट टू एक्टिवेट द नेक्स्ट टाइमिंग सिग्नल, ठीक है। तो जब भी आपके काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास फिर नया टाइमिंग सिग्नल मिल जाएगा टी नोट, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल समझते हैं। ये डायग्राम देखिए जरा जो आपको दिख रही है। सो यहाँ पे क्या है, टी नोट, T1, T2, T3, T4 तक आपका टाइमिंग सिग्नल चला, मींस के सीक्वेंस काउंटर चला जिसने के इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद जब उसके पास T5 आया तो उसने उसको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो जब भी वो क्लियर होगा तो दोबारा से आपके पास कौन सा सिग्नल आ जाएगा, टी नोट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अज्यूम करा है हमने कि T4 के ऊपर SC इज क्लियर टू 0 इफ द डिकोडर आउटपुट इज D3। आपका सीक्वेंस काउंटर जो है वो क्लियर हो गया 0 अगर आपके काउंटर की, आपके डिकोडर की जो आउटपुट है वो D3 है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ गया है, क्लॉक। यहाँ पे क्लॉक सिग्नल, मैं इसको समझाता हूँ आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर, जरा इसको समझना ध्यान से। मैं करने क्या जा रहा हूं, D3 T4 D3 T4 इसको एक्टिवेट करना है एंड इसके ऊपर आपकी SC की वैल्यू होनी है 0। तो सबसे पहले बेटा मैं बनाने जा रहा हूं यहाँ पे क्लॉक पल्सेस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एक क्लॉक पल्स है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दूसरा क्लॉक पल्स है, ठीक है। डायग्राम देखिए। उसके बाद फिर आ गया तो सबसे पहले मेरे पास आया, जब टाइमिंग सिग्नल आया मेरे पास टी नोट, तो टी नोट ने क्या करा, यहाँ पे हाइट अचीव करी, ये हो गया यहाँ तक, और बाद में वो लो रहा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास टी नोट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है T1, T2, T3, ठीक है। उसके बाद आया ये है आपका टी नोट, तो ये हाई शो कर रहा है। देन यू हैव T1, T1 ने यहाँ पे आगे हाइट शो करनी है एंड सो ऑन। सिमिलरली T2 आया, T2 जब आएगा यहाँ पे आगे उसने हाइट शो करनी है, समझ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, T3 और T4 भी ऐसे हाइट शो करेगा। देन अब D3 जो है वो एक्टिवेट कब होना है, D3 when T3 is initiated, when the value of T3 is equals to 1, then D3 is activated. That is here the value of D3, पहले वो लो पे था, then when T3 is activated तब उसने हाइट अचीव कर ली। That is the reason here I am showing this signal to higher value. So this is its lower value, that is 0 value, and this is its first value, that is higher value. Am I clear? Then we have CLR. CLR means clear. Then your sequence counter,
SC, the value of SC is cleared. When it is being cleared, when T4 is activated. So here it keeps on rising, and when the value of T4 is, that is upon this point, then it is being cleared. So it is showing with low. It is showing with low. Am I clear? हेलो, ये स्टूडेंट्स क्लियर हुई? जो टाइमिंग डायग्राम आपके सामने दिख रही है पीपीटी के अंदर, ये क्लियर है कि नहीं? हेलो, यस सर क्लियर है। इसके अंदर कोई डाउट है? इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारे पास टी नोट आया, तो टी नोट कब हाई होना है? जब उसका कोरेस्पोंडिंग एक्टिवेट होगा सिग्नल। ठीक है, ये टाइमिंग एंड सिग्नल हमें कहां से मिल रहे हैं? सीक्वेंस काउंटर से, एससी। ठीक है, सो एससी जो है वो हर बार इंक्रीमेंट होता है, लेकिन वंस इन अ वाइल इट इज बीइंग क्लियर्ड। तो आपको बताना पड़ेगा वो क्लियर कब हुआ? जब D3 की वैल्यू 0 सेट हुई है। यहां पे देखिए D3 T4, देन SC is being cleared, right? So here we have, आपकी जो डायग्राम है उसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है? D3, सो D3 यहाँ पे क्या करा हुआ है? पहले उसको 0 का टच करा, उसके बाद वो हाई हो गया। हाई कब हुआ? जब वो T3 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, so the first positive transition of a clock clears SC to 0, which in turn activates the timing signal T naught out of the decoder. So T naught is active during one clock cycle. The positive clock transition labeled T naught in the diagram will trigger only those registers whose control inputs are connected to timing signal T naught. So SC is incremented with every positive clock transition unless its CLR input is active. So if SC is not cleared, the timing signals will continue with T5, T6, so on up to T15. तो अगर मैं SC की वैल्यू यहाँ पे 0 ना करता तो T5, T4 के बाद मेरे पास आना था T5, T6 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि मैंने SC की वैल्यू 0 कर दी है। 0 कब करी है? T4 के बाद, तो इसलिए T5 नहीं आया। T5 की बजाय मेरे पास क्या आ गया? T नोट आ गया। ठीक है, उसके बाद सो द लास्ट 3 वेव फॉर्म्स, ये जो आपको दिख रही हैं, shows how SC is cleared when D3 T4 is equals to 1. So output D3 from the operation decoder becomes active at the end of timing signal T2. तो ये हमने assume करा है D3 कब एक्टिव हुआ? जब T2 खत्म हुआ, जब आपका T2 जो टाइमिंग सिग्नल था वो खत्म हुआ, उसके बाद D3 एक्टिव हुआ। ठीक है, so when the timing signal T4 becomes active, the output of AND gate that implements the control function D3 T4 becomes active. ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारे पास क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो उसके लिए वो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है उनको, और वो वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंट्रोल मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, सिमिलरली एड्रेस रजिस्टर जो माइक्रो प्रोग्राम के अंदर यूज होता है उसको बोला जाता है CAR, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, जिसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है। देन वी हैव CBR, कंट्रोल बफर रजिस्टर। ठीक है, तो when a micro instruction is read from the control memory, it is transferred to CBR. It activates the control signals.
सो सीक्वेंसिंग लॉजिक, इसका काम क्या होता है? इट लोड्स द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर एंड एक्टिवेट्स द रीड सिग्नल. नेक्स्ट वी हैव टू डिकोडर्स आर यूज्ड इन दिस डायग्राम. फर्स्ट डिकोडर का काम क्या है? फर्स्ट डिकोडर ट्रांसलेट्स द OP code from the instruction register to CAR and it is used for horizontal micro instructions. Second decoder का काम क्या है? It decodes, it translates the code into control signals and it is basically used for vertical micro instructions. तो फटाफट ये डायग्राम के अंदर देखिए. सबसे पहले हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे हार्डवायर्ड कंट्रोल के अंदर इंस्ट्रक्शन रीड करके आपकी IR के अंदर जाती थी, सिमिलरली माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अंदर भी आपकी जब इंस्ट्रक्शन रीड होती है तो वो सबसे पहले किसके अंदर जाती है? IR के अंदर जाती है. IR के बाद वो डिकोडर के बाद डिकोडर से रीड होकर वो जाती है कंट्रोल CAR के अंदर. उस CAR के बाद वो जाती है कंट्रोल मेमोरी के अंदर, जहां पे आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी होकर माइक्रो प्रोग्राम बनता है. माइक्रो प्रोग्राम बनने के बाद वो जाता है कंट्रोल बफर रजिस्टर. ठीक है. सो इट आल्सो एक्टिवेट्स दी कंट्रोल सिग्नल्स. वो कंट्रोल सिग्नल्स एक्टिवेट होकर सेकंड डिकोडर के पास जाते हैं, जहां से आपको आउटपुट मिल जाती है. ठीक है. ठीक है. तो पहली इंस्ट्रक्शन रीड होने के बाद जो सेकंड वाला डिकोडर है दोबारा सीक्वेंसिंग लॉजिक को इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर देता है कि तू अगले वाली इंस्ट्रक्शन रीड कर ले कंट्रोल मेमोरी से. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये सारा सीक्वेंस लिखा हुआ है जो कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोग्राम के अंदर फॉलो करता है. ठीक है. टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन द सीक्वेंसिंग लॉजिक एक्टिवेट्स द रीड सिग्नल फॉर द कंट्रोल मेमोरी. द वर्ड whose address is specified in car is read into CBR control buffer register. ठीक है. जिसका एड्रेस कार के अंदर होता है वो वाली इंस्ट्रक्शन कंट्रोल बफर रजिस्टर के अंदर रीड करी जाती है और द कंटेंट्स ऑफ CBR एक्टिवेट्स द कंट्रोल सिग्नल्स एंड जनरेट द नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन फॉर द सीक्वेंसिंग लॉजिक. ठीक है. So these are the differences between hardwired CU and microprogrammed CU. इसको go through कर लो, ये पेपर में 10 मार्क्स का आता है क्वेश्चन. ठीक है. Differentiate between या compare hardwired and microprogrammed CU. अब इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछ लो. ये आपका लास्ट टॉपिक है फॉर टुडे. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? एम आई क्लियर? सर. यस सर. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. मैं दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हार्डवायर्ड कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंस बिटवीन हार्डवायर्ड CU एंड माइक्रो प्रोग्राम CU. ठीक है. तो सबसे पहले जो कंपैरिजन है, हार्डवायर्ड CU जो है वो फास्ट है, माइक्रो प्रोग्राम CU जो है वो स्लो है. कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हार्डवायर्ड की ज्यादा है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा हार्डवेयर लगता है और माइक्रो प्रोग्राम की चीपर है. फ्लेक्सिबिलिटी नॉट फ्लेक्सिबल. क्यों फ्लेक्सिबल नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है बहुत ज्यादा. ठीक है. क्योंकि सर्किटरी के अंदर ज्यादा चेंजेस करनी पड़ती है, तो इट इज नॉट फ्लेक्सिबल. Then we have ability to handle complex instructions. Difficult in case of hardwire, easier in case of microprogram CU. So decoding complex होती है hardwired के केस के अंदर, microprogram के केस के अंदर easier होती है. Hardwire की applications है RISC, reduced instruction set computing. तो ये भी है हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम पढ़ेंगे रिस्क माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सिस्क माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है. नेक्स्ट है
इंस्ट्रक्शन सेट साइज स्मॉल है 8 बाइट का, लार्ज है माइक्रो प्रोग्राम सीयू का, माइक्रो कंट्रोल मेमोरी एब्सेंट होती है हार्ड बाइट के अंदर, लेकिन ये प्रेजेंट होती है माइक्रो प्रोग्राम सीयू के अंदर, ठीक है। सो कंट्रोल एरिया फंक्शन जो है इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर, implemented in case of software. So thank you students, this is done for today. Thank you very much. तो मैं पीपीटी आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं ग्रुप में, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बुक डाउनलोड कर ली होगी नेट से, मॉरिस मैनो की। सिंपली गूगल कीजिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बाय एम मॉरिस मैनो। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये दिख रही है कैमरे के सामने? यस सर। ये वाली आपकी बुक है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर 3rd एडिशन, या लेटेस्ट अब 4th चल रहा होगा, बाय एम मॉरिस मैनो, ठीक है। तो ये आपको नेट से मिल जाएगी इजीली। थैंक यू। थैंक यू सर।